हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल लेवल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी अगर आपको मतलब लॉस हुआ होगा मेरे वजह से, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मेरे को जब अब मैं सब उससे फ्री हुआ हूँ, फेस्टिवल्स और उससे, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम बर्चेस। ठीक है, तो आज हम बर्चेस पोएम को डिस्कस करेंगे। और जो बर्चेस जो पोएम है, ये जो है एक ओड है। ओड क्या होता है? एक स्रोत। हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्रोत। अब स्रोत क्या होता है? एक लिरिकल फॉर्म में एक जो है ना, एक लिरिक होता है, एक जो है ना सॉन्ग होता है। उसे जो है ना, मतलब कोई भी जो पोएट है वो उसे नेचर से कनेक्ट करके उसे संग करता है, गाता है। ठीक है, तो बर्चेस जो हैं, बर्चेस होती हैं, जो ट्री होता है ना, ट्री होता है, उसकी ब्रांचेस को हम बर्चेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही मतलब, अगर हम इसका सेंट्रल आइडिया का बात करें या सब्सटेंस या फिर एक जो मेन आइडिया है इस पोएम का, वो ये है कि ये जो पोएम है बर्चेस, इसमें जो है, जो पोएट है ना, वो ये बात करता है कि जब वो छोटा हुआ करता था तो वो उसकी ब्रांचेस, ट्रीज़ की जो ब्रांचेस पे जो है लटक के उन पे झूला झूला करता था, उनसे खेला करता था। वो उन पे पैर रख के ऊपर चढ़ जाता था और फिर उनसे कैसे जो है सबसे ऊपर जाके वहाँ से छलांग लगाता था। तो यही है इस पोएम में। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले मैं पोएम आपके सामने पढ़ देता हूँ और आपको उसमें टेक्स्ट भी लगा दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूँगा कि मतलब हम इसको ऐसे करेंगे कि पहले 1 से 9 लाइन तक को एक्सप्लेन कर दूँगा, फिर 10 से 13, ऐसे ऐसे करके जो है मैं थोड़ी थोड़ी लाइंस को एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। When I see birches bend to left and right across the lines of straighter, darker trees, I like to think some boy's been swinging them, but swinging doesn't bend them down to stay as ice storms do. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and crazes their enamel. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells, shattering and avalanching on the snow crust. Such heaps of broken glass to sweep away, you had think the inner dome of heaven had fallen. They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they are bowed so low for long, they never right themselves. You may see their trunks arcing in the woods, years afterwards, trailing their leaves on the ground, like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. But I was going to say, when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as he went out in to fetch the cows. Some boy too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself, summer or winter, and could play alone. One by one, he subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them, and not one but hung limp, not one was left for him to conquer. He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground. He always kept his boys to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. Then he flung outward
feet first, with a swish, kicking his way down through the air to the ground. So was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. It's when I am weary of considerations, and life is too much like a pathless wood, where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twig having lashed across it open. I had liked to get away from earth a while and then come back to it and begin over. May no fate wilfully misunderstand me and half grant that what I wish and snatch me away, not to return. Earth's the right place for love. I don't know where it's likely to go better. I had liked to go by climbing a birch tree and climb back black branches up a snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. That would be good both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. तो ये थी हमारी पोएम। तो अब हम इसको जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसको अब मैं दोनों लैंग्वेजेस में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। तो आप अपने नोट्स को एक पेन और कॉपी, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने साथ रखिए और अपने जो है मेन मेन पॉइंट जो आपको लगते हैं वो आप उसे नोट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो लाइन नंबर जो 1 से 9 है उसमें पोएट क्या कहता है, द पोएम इज़ एन ओड टू बर्च ट्रीज। मतलब कि ये जो पोएम है वो एक ओड है, वो एक स्रोत है, वो एक लिरिक है टू बर्च ट्रीज, मतलब कि ट्रीज़ की ब्रांचेस के लिए, ठीक है। द पोएट सेज दैट व्हेन ही सीज द बर्च ट्रीज बेंड टू देयर लेफ्ट एंड राइट। पोएट कहता है कि जब भी वो ये देखता है कि जो ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की वो इधर उधर बेंड हुई हैं, इधर उधर किस तरफ, अलग अलग डायरेक्शन में, या तो लेफ़्ट में या फिर राइट में, इन कंट्रास्ट टू अदर ट्रीज़, मतलब कि उसके कंपैरिजन में जो दूसरे पेड़ हैं विच आर स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधे खड़े हैं और जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। ही लाइक्स टू थिंक दैट सम बॉय हैज़ बीन स्विंगिंग ओवर देम। उसे याद आता है वो, और वो इमेजिन करने लगता है, सोचने लगता है कि ये जो इसकी जो ट्रीज़ हैं, ये जो है इनकी जो ब्रांचेस हैं वो कैसे इधर उधर जो टिल्ट हो रही हैं लेफ़्ट और राइट में, वो इसलिए हो रही हैं कि हो सकता है कोई बच्चा हो वो इन पे जो है झूला झूलता हो, इन पे लटकता हो, इसलिए जो है ट्रीज़ की ब्रांचेस जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, ठीक है। But the poet also expresses the view that the swinging of the boy might temporarily bend the birches whereas they seem bending since long। तो वो अब दूसरी तरफ ये कहता है कि क्या पता जो है मेरा जो ये व्यू है, देखने का नज़रिया है, वो गलत हो, क्या पता ये जो है टेम्परली जो है बेंड हुई हो किसी बॉय की वजह से और फिर ये ठीक हो गई हो। पर जो है इनको ऐसा देख के लगता है कि जो है ये जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेज़ हैं ये काफ़ी टाइम से ऐसी ही बैंड हुई हुई है। मतलब बॉय तो जो है जब वो छोटा रहा होगा तब खेलता होगा, फिर बड़े होने के बाद तो वो आया नहीं होगा, लेकिन ये तो हमेशा के लिए ऐसे हो गई। तो ऐसा कैसे, बॉय तो जो एक टेम्प्रेरी थिंग था, ये टेम्प्रेरी टाइम कुछ जो है छोटे टाइम पीरियड के लिए आया, जब वो छोटा हुआ करता था उसके बाद तो वो आया नहीं क्योंकि वो बड़ा हो गया, ठीक है। दिस बेंडिंग माइट हैव बीन कॉज बाय द आइस स्टॉर्म। मतलब कि ये जो बेंडिंग है ट्री की और ट्री की ब्रांचेस की, वो किस लिए हुई है कि कोई जो है तूफ़ान आया हो, ठंडा ठंडा आंधी तूफ़ान आया हो उस वजह से, या फिर अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ स्पेल ऑफ रेन। अब जो है पोएट आगे कहता है कि जब जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई उसके बाद जो सुबह हुई धूप वाली सर्दियों के टाइम पे ऑफन ब्रिंग्स विद इट अ स्नोफॉल विच मेक्स द बर्चेज लोडेड विद आइस। अब क्या होता है कि अब जो बहुत तेज़ बारिश हुई उसके बाद जो स्नोफॉल हुआ उससे जो है स्नोफॉल ने पेड़ों की ब्रांचेस के ऊपर जो वो गिरी और फिर वो वहाँ रुकी, तो उसका जो भार था, उसका जो वेट था स्नोफॉल का, उसकी वजह से ये जो ब्रांचेस थी वो
भारी होने की वजह से जो है इधर उधर मुड़ गई, मतलब कि लेफ़्ट और राइट में जो है वो टिल्ट हो गई, झुक गई। When the wind strikes against them, it becomes a cause of multicolored cracks in their bark। अब क्या होता है कि जब जो है हवा चलती है और हवा जो है उसको क्या करती है, चीर देती है बीच में से ब्रांचेस को, पेड़ को, और उसमें क्या होता है एक ना क्रैक, जो है ना क्रैक्स आप देख सकते हो, क्रैक आ जाते हैं ना पेड़ में, तो उसको जो है क्रैक्स को बिल्ड कर देती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइन नंबर 10 to 13 में। तो 10 to 13 में क्या बोलता है, दीज लाइन्स प्रेजेंट अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द आइस लेडन बर्च ट्रीज एक्सपोज टू द वार्म रेज ऑफ द सन। अब क्या होता है कि ये जो लाइन्स हैं इनमें जो है पोइट कहता है कि ये जो लाइन्स है ना वो एक ब्यूटीफुल पिक्चर पोर्ट्रे करती हैं उन ट्रीज़ की, जिसमें क्या होता है कि वो जो ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं उनमें जो आइस के भार से जो स्नोज़ में गिरा है उसके जो उससे क्या होता है कि वो जो जब उसमें धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी उसमें पड़ती है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्यारी लगती है, ठीक है। द वार्मथ ऑफ द सन मेक द आइस मेल्ट एंड ब्रेक इनटू पीसेस विच लुक लाइक क्रिस्टल शेल्स। अब क्या होता है कि जो गर्मी सूरज की और किरणें सूरज की उस आइस पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि वो आइस जो है ना मेल्ट होने लगती है, बर्फ़ मेल्ट होने लगती है, और फिर उसे जो है ना छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देती है। जो गर्मी होती है ना, सन की जो गर्मी होती है, और वो क्या जो है शेप ले लेते हैं, वो एक क्रिस्टल का शेप ले लेते हैं। अब क्रिस्टल तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, अगर आप उसे जो है धूप में रख के देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कलर्स और वो सब दिखने लगता है, ठीक है। द बिग पीसेस ऑफ द स्नो रशिंग डाउनवर्ड्स प्रोड्यूस अ वाइब्रेटिंग एंड एवलांसिंग साउंड। अब क्या होता है कि जो बड़े जो पीसेस होते हैं ना स्नो के, वो जब नीचे गिरते हैं तो उनसे उनमें जो है ना एक वाइब्रेशन जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन होती है उसमें, और एक ना बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं एवलांचिक साउंड, ठीक है। दीज ह्यूज पीसेस of broken snow flow down, giving semblance of glass pieces falling down from inner dome of heaven। मतलब कि इसमें जो है ये जो पीसेस है ना स्नो के, जो जब ये टूट के नीचे गिरते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि बिल्कुल जैसे टूटा हुआ कांच होता है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब आपका जैसे जब कांच टूटता है ना, तो कांच जब टूटता है तो उस टाइम पे जो है जो कांच के टुकड़े जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जो है स्नो जब जो है ना क्रिस्टल फॉर्म में होके और फिर जब वो पेड़ से नीचे गिरती है और टूटती है, तो वो भी बिल्कुल उस टूटे हुए कांच की तरह दिखती है। तो ऐसे मतलब पोएट इसको एड्रेस कर रहे हैं, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं टूटे हुए कांच को, सॉरी स्नो के क्रिस्टल्स को टूटे हुए कांच से, ठीक है। और वो जो स्नो कहाँ से गिरती है, हेवन, हेवन मतलब कि स्वर्ग से गिरती है, स्वर्ग के बादलों जैसे, स्वर्ग के मतलब एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर जैसी लगती है वो स्नो, ठीक है। अब जो है हम 14 से 20 लाइन को डिस्कस करते हैं। द बर्च ट्रीज आर बर्डन विद द लोड ऑफ द ब्रोकन पीसेस ऑफ स्नो। अब जो बर्च ट्रीज है ना, वो किससे जो है किसके भार से दब गए हैं, ब्रोकन पीसेस ऑफ स्नो, मतलब कि जो है बर्फ़ के टूटे जो है जो टुकड़े हैं उससे ढक गए हैं। बट दे डोंट ब्रेक, रादर रिमेन इन द बोड डाउन position so that they are never able to regain their original shape। अब वो क्या होता है कि वो जो ब्रोकन पीसेस है ना स्नो के, अब उससे ज़्यादा वो नहीं टूटते, पर उससे क्या होता है कि वो जो है उसी पोजीशन में रहते हैं, जो उनको मतलब ऑलरेडी जो टूटे हुए हैं उसी पोजीशन में रहेंगे, वो उस और छोटे पीसेस में नहीं टूटेंगे। तो उससे क्या होता है ये मतलब इससे क्या होता है कि वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, अब वो अपनी शेप को दोबारा से चेंज तो कर नहीं सकते जैसे वो पहले हुआ करते थे जब वो उससे पेड़ से गिरे। तो और जो है जब उन पे जो है धूप सन की रोशनी पड़ी, तो उस टाइम पे जो उन्होंने शेप थी वो उन शेप में वापस तो जा नहीं सकते, ठीक है। इवन आफ्टर अ गैप ऑफ मैनी ईयर्स दे कैन बी सीन विद देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स एंड लीव्स टचिंग द ग्राउंड। अब क्या होता है कि जो है ना मतलब काफ़ी सालों के बाद भी जो गैप है ना ट्रीज़ में, वो ऐसे ही दिखता रहता है,
और अब गैप जो हो गया ट्रीज़ में वो भी ऐसे दिखता रहता है, लेकिन और जो है काफ़ी साल गुजर जाते हैं लेकिन जो गैप्स हैं वो ट्रीज़ में वो ऐसे ही रहते हैं। और जो वुड्स और लीव्स में जो एक साउंड, जो एक बेंट, जो मतलब एक ट्रीज़ में और उनकी जो ब्रांचेस में एक जो बेंट आ गया है वो हमेशा जो है वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे कितने भी साल गुजर गुजर जाएं। दिस पोजीशन ऑफ द बर्च ट्रीज इवोक्स इन वंस माइंड द इमेज ऑफ लिटिल गर्ल्स। अब क्या है कि ये जो बर्च ट्रीज़ हैं इनकी जो ये पोजीशन है ना, कि मतलब ये ऐसे झुकी हुई हैं, तो ये किसका इमेज पोर्ट्रे करती हैं? छोटी लड़कियों का इमेज पोर्ट्रे करती हैं, सिटिंग विद देयर हैंड्स ऑन देयर नीज। मतलब कि जो है वो कैसे बैठी हैं, वो ब्रांचेस कैसे लेटी मतलब झुकी हुई हैं, कि मतलब वो एक लड़की का, लड़कियों छोटी लड़कियों का जो है ना इमेज पोर्ट्रे करती हैं कि छोटी लड़कियां कैसे बैठी हैं, अपने हैंड्स को अपने नीज़ पे रख के बैठी हैं, एंड हेयर थ्रोन बिफोर देम टू ड्राई इन द सन। और अपने जो है ना बालों को खोल के बैठी हैं, कि कैसे बैठी हैं कि अपने जो है बालों को खोल के बैठी हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि वो गीले हो गए हैं और सन के सामने बैठी हैं, कि ताकि हमारे बाल जो गीले हैं वो सूख जाएं। ठीक है, अब आते हैं लाइन नंबर 21 से 27 पे। द पोएट वॉज गोइंग टू टेल समथिंग मोर डाउन द आई स्टॉर्म व्हेन अ ट्रूथ ब्रोक इन अपॉन हिज माइंड। तो अब क्या होता है कि पोएट जो है ना कुछ हमें ऐसा बताना चाहता है जो उसने ऊपर नहीं बताया, और जो आई स्टॉर्म जो मतलब तूफ़ान है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा सच है जो मतलब उसके दिमाग में छुपा हुआ था और अब वो बाहर आना चाहता है। ही इमेजिन्स दैट सम विलेज बॉय might have been tripping over them making them bend downwards। अब वो इमेजिन करने लगता है कि कोई जो है कुछ बच्चे थे गांव के, वो क्या करते थे, वो इस पेड़ के पास आते थे और इसकी जो ब्रांचेस है, उसकी बर्चेस है, उससे लटक जाते थे, और उससे क्या हुआ, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो जो है नीचे की तरफ मुड़ गई, मतलब लेफ़्ट और राइट में नीचे की तरफ मुड़ गई। द बॉय माइट हैव इंडल्ज इन दिस स्पॉट व्हेन ही वेंट आउट टू फेच हिज काउज। अब जो है मतलब कि हर समय तो वो लड़का यहाँ आता नहीं था, लेकिन वो कब आता था, जब वो अपने गाँव को सॉरी जब वो अपने गाय को चारा खिलाने के लिए और गायों को चराने के लिए आता था यहाँ जंगल में, तब जो है उसकी गाय तो चरती रहती थी अपना वो, और वो इन पेड़ों की ब्रांचेस से लटक के खेलता रहता था। दिस विलेज बॉय लिव्ड too far away from the town to learn the games like baseball। अब ये जो जो है ना, ये जो विलेज बॉय था, जो गांव का बच्चा था, वो बहुत ही दूर रहता था शहर से, और फ्रॉम द टाउन टू लर्न द गेम्स लाइक बेस। तो अब वो जो है ना मतलब बहुत ही दूर रहता था अपने गांव से और शहर से, और किस लिए रहता था कि अपना जो है अपना बेसबॉल एक गेम होता है उसको सीखने के लिए वो बहुत दूर रहता था गांव से, अपने शहर में जाके रहता था। हिज ओनली स्पोर्ट इन्वॉल्व सिंगिंग हैप्पीली ऑन द बर्ड ट्री इन समर और विंटर सीजन। तो अब जो है ना उसका जो एक स्पोर्ट, एक जो इसका खेल था बच्चे का, वो यही था कि वो उसमें जो ना स्विंग करता था, और मतलब कि झूलता था उस ट्रीज़ की ब्रांचेस पे। कौन कौन से सीज़न में? समर और विंटर, मतलब कि गर्मियों के मौसम में और जो है सर्दियों के मौसम में। ठीक है, imagining the boy's movement, the poet says that one after the other, the boy climbed all the birches of his father, leaving them subdued so that it seems that all their stiffness has been taken out। अब जो है मतलब कि ये जो है ना ऐसे इमेजिन कर रहा है ये पोएट कि ऐसे जो है कोई विलेज बॉय होगा, कोई गांव का बच्चा होगा, वो ये सब करता होगा। तो अब पोएट आगे कहता है कि वो जो है ना, क्या पता इनकी जो ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की उस पर लटक जाता हो, और मतलब उसके जो फोर फादर्स होंगे या उसके फादर ने भी ऐसे ही करा हो, तो उनको देखा देखी उनसे सीखा सीखा सिखाया होगा, इसलिए वो जो है इन पेड़ों की ब्रांचेस पे लटक के देखता है और क्या चेक करता है कि ये कितनी स्टिफ हैं, कितनी ज़्यादा ये मज़बूत हैं। अगर मैं इन पे लटकता हूँ तो ये अगर मुड़ जाती हैं या नहीं मुड़ती, या फिर टूटती हैं नहीं टूटती, तो काफ़ी उसके मन में सवाल आते हैं। दे ऑल बिकम लिम्प एंड नन ऑफ देम कुड स्टैंड इरेक्ट। अब क्या होता है कि मतलब कोई भी जो है ना ब्रांच जो है ना एक सीधा नहीं खड़ी रहती, सब जो है ना इधर उधर मुड़ जाती हैं।
ठीक है। ही लर्नड ऑल द स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ दैट ही कुड अंडरटेक देयर, मतलब कि अब वो जो है ना वहाँ पे रहते रहते जो है वो सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ सीख जाता है इस पेड़ के बलबूते, वो विलेज बॉय जो कि वो शहर में रह के नहीं सीख पाया था। ठीक है। ही लर्नड that he should not climb over the trees hastily, otherwise they would come down to the ground, marrying spoiling all his स्पोर्टिव अपॉर्चुनिटीज़। अब वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना लड़का, तो उसे धीरे धीरे ये समझ आती है कि उसे जो है ना इन ट्रीज़ की ब्रांचेस पे नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि जो है इनको भी अगर वो इन पे लटकेगा तो एक दिन क्या होगा, ये जो ब्रांचेस हैं ये भी टूट जाएंगी और साथ में उसके लटकने की वजह से, उसके वेट की वजह से ये पेड़ भी नीचे गिर जाएगा। तो उसे ये धीरे धीरे एक बात समझ आती है कि वो जो है, और इस वजह से क्या होगा कि जो उसकी जो गेम वो खेलता था उन पेड़ों के साथ, वो नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो तो गिर जाएंगे ना पेड़ नीचे, जब वो उन पर लटकता है वो इतना भारी है तो उनकी ब्रांचेस में पहले असर पड़ेगा, फिर और जो बच्चे होंगे गाँव के वो भी ऐसे करेंगे, तो उसकी वजह से जो है वो पेड़ जो है भार उनका झेल नहीं पाएगा और वो गिर जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना आंधी तूफान और बर्फ़ को झेल रहा है पेड़, इस वजह से। ठीक है। तो अब हम आते हैं लाइन नंबर 35 से 40 पे। The poet further describes the sportive activities of the village boy। अब जो है ना पोएट आगे जो है कहते हैं कि आगे डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी जो विलेज बॉय था, जो गांव का बच्चा था, वो उसकी और भी जो है ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो स्पोर्ट वाली हैं, जो वो स्पोर्ट खेलते मतलब जो खेल खेलता है वो उसके साथ। द बॉय ऑलवेज मेंटेन्स हिज बैलेंस वाइल एस्पायरिंग द फॉर द टॉप ब्रांचेज ऑफ द बर्चेज। अब जो है वो बताते हैं कि जो लड़का है ना वो हमेशा एक बैलेंस बना के रखता है पेड़ के ऊपर, ठीक है, और ब्रांचेस के ऊपर, ताकि वो वहाँ से नीचे ना गिर जाए। वहाँ पे वो एक बैलेंस बना के रखता है कि मतलब वो उस पर चढ़ा भी रहता है और वो गिरता भी नहीं। ही क्लाइम्स केयरफुली एविंसिंग द सेम पेशेंस विच यू शो वाइल फिलिंग अप कप। अब वो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से क्लाइम करता है और उसके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस है, और मतलब उसके पास इतना ज़्यादा पेशेंस है, वो शो करता है उन ब्रांचेस पे लटकते वक्त, जैसा कि एक आदमी जो है पेशेंस रहता है ना, कि मतलब जब वो कोई काम कर रहा है, जैसे कि कप को भर रहा है, कप में पानी डाल रहा है, ठीक है, और उसमें एक लेवल बना होता है, वहीं तक वो पानी डालना होता है, अगर वो वहीं तक ठीक है, वहीं तक जो है फोकस के साथ, पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वहाँ तक उसे भरेगा, या थोड़ा सा उससे ऊपर भी भर देगा। बट क्या होता है कि अगर वो उससे ज़्यादा भर देगा पानी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो जब हम मार्ग से पानी ज़्यादा भर देते हैं टंकी वगैरह में तो वो बहने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अब वो कहता है कि आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द बर्चेज ही वुड फ्लिंग हिमसेल्फ किकिंग इन द एयर विद हिज फीट एंड लैंड ऑन द ग्राउंड आफ्टर अ स्विशिंग साउंड। तो अब वो क्या करता है, जैसे ही वो विलेज बॉय जो ऊपर पहुंच जाता है टॉप में पेड़ के, वहाँ से वो ब्रांच पे खड़े होके वहाँ से हवा में लात मारते हुए और नीचे कूदता है, और ना एक साउंड करता है नीचे आते वक्त, ठीक है, उससे स्विशिंग साउंड कहते हैं उसे, और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है वहाँ से मतलब कूदते वक्त। ठीक है। अब हम आते हैं लाइन नंबर 41 से 47 पे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जंपिंग ओवर द बर्चेज मेक्स द पोएट रेमिनिसेंस हिज ओन पास्ट। अब जो है पोएट कहता है कि हाँ, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया ना मैंने एक जंपिंग बॉय का, कि वो कैसे जो है बर्चेज जो ब्रांचेज हैं उसके ऊपर से कूदता है, और जो है वो क्या याद दिलाता है पोएट को, उसके ही पास्ट का याद दिलाता है, जब वो खुद एक स्विंगर था बर्चेज का, और वो कैसे अपने चाइल्डहुड में ट्रीज़ की ब्रांचेस से जो है फ्रेंडली था अपने चाइल्डहुड डेज़ में, और ही विशेज़ अगेन एंड अगेन टू गो बैक टू दोज डेज़। और वो बार बार जो है ना विश करता है, बार बार प्रे करता है कि काश मैं उन दिनों में वापस जा सकूं जिन दिनों में मैं पहले हुआ करता था, मैं जब बच्चा था, मैं इन ब्रांचेस पे चढ़ के मैं कूदा करता था, मैं इनके साथ खेला करता था, इन पे लटका करता था। ठीक है। द विश arises when he becomes weary of the worldly chores। अब जो है इसकी जो ये विश अराइज हुई वो कब हुई, जब वो मतलब ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गया अपने जो है खुद के कामों में और वर्ल्डली चोर्स मतलब कि दुनिया के काम काजों में, एंड लाइफ लुक्स लाइक अ pathless wood with all its cobwebs and broken twigs beating against the face and eyes।
तो अब क्या है कि मतलब जो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कांटे हो गए हैं, लाइफ बहुत ही ज़्यादा पाथलेस हो गई है। उसकी लाइफ में यही नहीं पता उसे कि वो जहाँ चल रहा है वो आगे वहाँ गड्ढा है या ज़मीन है, उसे मतलब कुछ पता ही नहीं है। वो बस चले जा रहा है अपने जो है फेस और उसी आईज़ पे वो दिख रहा है कि वो कितना ज़्यादा टूट चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन नंबर 48 से 53 में। तो इन लाइंस में पोएट क्या कहता है, द पोएट सेज दैट ही वुड लाइक टू एस्केप फ्रॉम द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अब पोएट कहता है कि यहाँ ना बहुत ज़्यादा दुख है और मत बहुत ज़्यादा चिंतन है, तो इस सब से मैं जो है ना दूर जाना चाहता हूँ, इस दुनिया से मैं दूर जाना चाहता हूँ। बट दैट वुड बी ओनली फॉर अ वाइल। पर जो है मैं अगर दूर चला भी जाता हूँ या जो ये क्या बोलते हैं केयरिंग और ये सब जो माहौल है ये बहुत ही कम समय के लिए है। ही वुड टेक टू रिटर्न द सेम रूटीन ऑफ लाइफ। अब क्या कहता है कि अब छोड़ो, मतलब मेरे को ना कहीं नहीं जाना, मेरे को ये यहीं रहना है और जो है मेरे को किसी की चिंता नहीं करनी, और मैं जो है ना बस अब ये सब सोच के अब मुझे जो है ना यू टर्न लेना है, दोबारा से अपना जो सेम रूटीन है मेरा रोज़ का उसी में आना है। आफ्टर अ रिफ्रेशिंग एडवेंचर लाइक वन ओवर बर्चेस। अब जो है मतलब ये बर्चेस के बारे में सोच के, अपने बचपन के बारे में सोच के, एक एडवेंचरस जो है ट्रिप को वो सोच के अपना वापस आ जाता है। ठीक है, कि अब छोड़ो, मेरे को तो वही करना है जो मैं अपने रोज़ करता हूँ, ये सब सोच के तो ऐसे ही होगा, मैं अपना कोई भी काम कर नहीं पाऊँगा। ही प्लीड्स दैट द डेस्टिनी शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड हिम एंड टेक हिम अवे परमानेंटली। अब वो जो है ना एक जो है ना मतलब रिक्वेस्ट करता है अपनी किस्मत से कि उसको जो है गलत ना समझें और उसको जो है ना मतलब टेक हिम अवे परमानेंटली फ्रॉम हिज एवरीडे लाइफ। और एक तरह से उसे जो है प्रे करता है कि उसे ना उसकी जो रोज़ की ये जो ज़िंदगी है ना उससे जो है ना दूर ले जाए कहीं, हमेशा हमेशा के लिए। द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ द राइट प्लेस टू लिव वेयर लिविंग वुड बी सो स्मूथ एंड एन्जॉयबल। तो अब जो है ना अर्थ को वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग वो जो पोएट कहता है कि अर्थ जो है ना बिल्कुल सही जो धरती है वो बिल्कुल सही जगह है रहने के लिए, और इससे ज़्यादा अच्छी और जो है अच्छी और इन्जॉय करने वाली जगह कोई है ही नहीं। ठीक है, अब जो है लाइन नंबर 54 से 59 में आते हैं, उसमें ये क्या कहता है, पोएट द पोएट वुड लाइक टू क्लाइंब अप ओवर अ बर्च ट्री। अब पोएट जो है कहाँ खड़ा होना चाहता है, बर्च। तो लाइन नंबर 54 से 59 में जो है पोएट ये कहना चाहता है कि द पोएट वुड लाइक टू क्लाइंब अप ओवर अ बर्च ट्री। पोएट जो है एक बर्च ट्री जो मतलब जो ब्रांचेस हैं ट्री की उस पे जो है ना खड़ा होना चाहता है, उस पे क्लाइंब करना चाहता है। एंड ही वुड कीप ऑन क्लाइंबिंग टिल ही रीचेस द टॉप। और वो तब तक लटकना चाहता है जब तक कि वो जो है उस पर लटकते लटकते सबसे पेड़ के ऊपर ना पहुंच जाए। और व्हेन द बर्ड्स विल बेंड डाउनवर्ड एंड ब्रिंग हिम बैक ऑन द ग्राउंड। और तब तक वो लटकना चाहता है जब तक कि जो ब्रांचेस हैं ट्री की वो जो है दोबारा से नीचे की तरफ ना झुक जाएं और उसे अपने आप ही नीचे ले आएं। ठीक है, और इट वुड बी गुड बोथ टू गो फ्रॉम एंड कम बैक टू अर्थ। उसके ये दोनों ही बातें अच्छी होंगी कि जो है मतलब ऊपर की तरफ जाए और वापस जो है अर्थ पे ही आए। ठीक है, अर्थ से ऊपर की तरफ जाए आसमान की तरफ और आसमान से वापस अर्थ पे आए। द पोएट सेज दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट टेस्टेड द प्लेजर ऑफ सिंगिंग ऑन द बर्चेज ही हैज़ श्योरली मिस समथिंग प्रेशियस इन लाइफ। अब पोएट कहता है कि अगर किसी आदमी ने जो है इस प्लेजर को टेस्ट ही नहीं करा है, इस प्लेजर को देखा ही नहीं है कि जो है जो ये स्विंगिंग है, बर्चेस जो ब्रांचेस हैं वो कैसे इधर उधर झूलती हैं, तो उसने जो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्ट अपनी लाइफ का मिस कर दिया है, प्रेशियस मोमेंट को लिव मिस कर दिया है। ठीक है, तो अब आगे वो कहता है देयर इज़ अ डीपर मीनिंग इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। अब जो है बहुत ही ज़्यादा डीपर और बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला मीनिंग छुपा है लास्ट लाइन जो है पोएम की उनमें। देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ। अब जो है ना एक तरह से ना बैलेंस्ड जो है अप्रोच है लाइफ का, मतलब कि इस इन लास्ट की लाइनों में अ पर्सन शुड लुक फॉर प्रेजरेबल vocations also while performing his household and worldly chores।
अब जो है ना आदमी को, इंसान को क्या करना चाहिए, अपनी जो है ना, जो प्लेजरेबल वोकेशन, मतलब कि जो खुशी वाली ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी की जो ऐशो आराम है, खुशियाँ हैं, उसको भी जीना चाहिए। भले ही वो जो है अपने घर के कामों में और समाज और दुनिया के कामों में बिज़ी है, पर उसके साथ साथ अपनी जो है ना उसको अच्छी लाइफ भी जीनी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। ये नहीं कि खाली वो काम काम करे जा रहा है। टू पुट इट इन अ बेटर वे, ताकि जो है ना वो एक तरह से जो है अपने आप को एक अच्छे जीवन में रख पाए, अपने एक अच्छे जो है सोसाइटी में रख पाए। देयर इज़ अ नीड फॉर पोलराइजेशन बिटवीन ऑपोजिट्स ऑफ फैक्ट एंड फैंटेसी। अब जो है एक इतना, मतलब कि एक तरह से डिफरेंस होना चाहिए। और मतलब कि एक एक तो फैक्ट होता है कि मतलब ये तो होना ही होना है, और एक फैंसी, मतलब कि जो है बस ऐसे दिखावा ही है, मतलब कि बस और रियलिटी और इमेजिनेशन में, मतलब कि रियलिटी में कुछ है और इमेजिनेशन कुछ है। मतलब कि आप इमेजिन कर रहे हो कि हम ना बहुत ही पैसे वाले हैं, हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और रियलिटी ऐसी नहीं है। आप रियलिटी में जो है आप खूब मेहनत कर रहे हो, तब जाके आप जो है, मतलब ऐसा है कि पर्दे के पीछे से क्या होता है कि हम दिखाते हैं ना, मूवीज़ वगैरह में होता है कि बाहर तो जी पूरा मतलब इतने अमीर बन के आप बैठ गए हो, ठीक है, और अंदर से आप दिख रहा है कि जब आप अंदर जाके जब काम कर रहे हो, मतलब आपने एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं छोटा सा देता हूँ कि आपने आजकल शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी चलते हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि मतलब एक आदमी होता है, वो क्या कहता है मतलब लड़की को पटाने के लिए, मतलब अपने उसमें मैं थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता हूँ और नहीं भी, तो ये खाली एग्जांपल है, मतलब आप इसे अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। खाली एक एग्जांपल है कि मतलब वो क्या करता है कि वो ड्राइवर के अपने, मतलब वो ड्राइवर है वो, ठीक है, और वो अपने मालिक की गाड़ी चला रहा है। अब वो लड़की को जो है मतलब प्रपोज करने के लिए क्या करता है कि उसके सामने जाता है, वो बोलता है कि ये सारी गाड़ियाँ मेरी हैं। तो अब उसे भी रियलिटी पता है ना कि भाई ये सब गाड़ियाँ मेरी तो है नहीं, ये सब मेरे मालिक की है, लेकिन खाली वो जो है इमेजिन कर रहा है कि अगर जो है मैं ऐसे करूँगा तो ये लड़की मुझसे पट जाएगी और मैं जो है इसको मतलब अपना बना लूँगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, इमेजिनेशन कर रहा है वो खाली, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में उसे भी पता है कि मैं तो ड्राइवर हूँ और मेरी क्या औकात कि मैं जो है इसको, मतलब सॉरी औकात शब्द नहीं, मतलब मेरी क्या हैसियत है कि मैं इसको जो है अप्रोच कर रहा हूँ लड़की को ड्राइवर होके। तो उसे जब कहीं ना कहीं एक सच्चाई पता लगेगी तो फिर वो तो मेरे से वैसे भी रिश्ता नहीं करेगी और मेरे से बात भी करना पसंद नहीं करेगी। तो ये है मतलब कि एग्जांपल रियलिटी और इमेजिनेशन का। और प्लेजर एंड पर्पस, मतलब कि अब आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है कि इस दुनिया में आओ, अपना गोल्स को अचीव करो, अपना काम करो और चले जाओ। लेकिन भगवान जी उसके साथ क्या क्या बोलते हैं कि आपको जो है आना है, काम करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, साथ में थोड़ा जो है अपना जो है मस्ती मौज में भी अपना टाइम स्पेंड करो। आपको दोनों ही चीज़ करनी है साइड बाय साइड। अब आप वो कैसे करते हो वो आपको डिसाइड करना है। तो ये जो पोएम थी, ये थी पूरी पोएम। मैंने आपको जो है डिटेल में, जितना डिटेल में हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। अब आप इसको देख के, अगर आपको वीडियो दोबारा, मतलब आपको नहीं आती एक बार में देख के, तो आप इसे दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगी। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाई है, ठीक है। और आप जो है नोट्स बनाते रहिए अपने इसमें से जो है करके, इंग्लिश और हिंदी में जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है। और तो ये हमारी वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें।